will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance, or non-adherence to statutory provisions. Honourable Speaker, sir, safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. Despite these assurances, prima facie, it was observed that internal rostering disruptions led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity, improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. Enhanced oversight on the ground continues. Passengers' interests have been at the center of every decision taken by the government. We intervened to cap fares so that no passenger would be exploited due to the sudden demand spikes and opportunistic pricing. Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. For the passengers who wanted the rebookings to be done, the same were done without any additional charges. We are monitoring each and every case of baggage handling over and ensuring that communication with passengers is both timely and dignified. As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honourable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest-growing aviation market, with year-on-year passenger growth of around 12%. India is already third biggest domestic aviation market, with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. To summarize, operations are stabilizing fast, safety remains fully in force, Indigo is being held accountable, passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. The government will remain fully vigilant until normalcy is achieved and will continue to ensure that every passenger in India travels safely, comfortably, and with the respect they deserve. Thank you, Honourable Speaker, sir. माननीय मंत्री महोदय ने अपना डिटेल स्टेटमेंट दिया है और सारी स्थिति को स्पष्ट किया है। संबंधित एजेंसी को नोटिस दिए गए हैं
उसके जांच का कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है कि उन्होंने सारे विषय को डिटेल तरीके से सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। कल आपने विषय रखा, मैंने कहा माननीय मंत्री जी डिटेल स्टेटमेंट देंगे। कल मैंने आपको बोलने का अवसर दिया था, ये आपका तरीका उचित नहीं है, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। मेरी ये अपेक्षा है कि आपको अगर कोई चर्चा करनी है तो आप नोटिस दीजिए, यही संसदीय परंपरा रहती है। आप बिना नोटिस दिए ही करें। कल आपने कहा मंत्री जी ने डिटेल स्टेटमेंट दे दिया, सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। आइटम नंबर 19 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 12th report. चलिए, तो आप सुन रहे थे उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू को, जो लोकसभा में अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि इंडिगो को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, नियमों के तहत कार्रवाई होगी, यह भी कहना है उनका। इंडिगो संकट पर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये पहले भी उड्डयन मंत्री की तरफ से कहा गया और एक बार फिर से उन्होंने लोकसभा में ये बयान दिया है और कहा है कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। हमने उड़ानों के लिए किराए की समय सीमा तय की है, हम यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये तमाम विपक्षी सवालों के जवाब उड्डयन मंत्री ने दिए हैं लोकसभा में। इंडिगो को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और आज आपको बताएं कि इंडिगो के सीईओ को भी जवाब देने के लिए तलब किया गया है। उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो संकट पर जिम्मेदारी तय होगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये जानकारी दी है कि धीरे धीरे अब हालात सामान्य हो रहे हैं, यात्रियों को उनका रिफंड दिया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि हम सुरक्षा से यात्रियों की कोई समझौता नहीं करेंगे। तो इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री का लोकसभा में यह जवाब, इंडिगो को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा नियमों के तहत कार्रवाई होगी और जो भी जिम्मेदारी हो वो तय की जाएगी और जो भी इसके पीछे दोषी होंगे, इंडिगो संकट के पीछे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने जवाब जरूर दिया है, देखना यह है कि विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट होता है या नहीं, क्योंकि जोरदार हंगामा एक बार फिर से हुआ है लोकसभा में उनके जवाब के बाद। तो इंडिगो को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उड्डयन मंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है। तो इंडिगो संकट पर जिम्मेदारी तय होगी। उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने लोकसभा में यह वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा हमने उड़ानों के लिए किराए की सीमा तय की है। दरअसल जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त इंडिगो को लेकर लोगों में नाराजगी थी, उसके बाद हस्तक्षेप किया गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरे हालातों पर नजर रखी और उस वक्त जिस तरह से मनमाने तरीके से किराया बढ़ाया गया, तकरीबन घरेलू जो फ्लाइट्स है उनका किराया 45,000 तक पहुंच चुका था। फिर हस्तक्षेप किया सरकार ने और उसके बाद किरायों की सीमा तय की गई और ये स्पष्ट तौर पर निर्धारित किया गया कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक का जो मिनिमम किराया है वो क्या होगा। और उसके बाद अब इस पर जवाब भी दिया है नागरिक उड्डयन मंत्री ने लोकसभा में। तो संवाददाता कमल कंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने तमाम सवालों का जवाब दिया है विपक्ष को कि किस तरीके से इंडिगो संकट पर सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा में उड्डयन मंत्री ने जवाब जो है वो विपक्ष के सांसदों को दिया है, क्योंकि विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया था कि इंडिगो का जिस तरीके से लोगों को काफी दिक्कतें हुई है, फ्लाइट कैंसिल हुई है, जिससे कि लोगों का पैसा तो लोगों को जो कंपनी के पास गया है, जो रिफंड अभी तक नहीं हुआ है और लोगों का जो सामान था, जो लगेज थे, वो भी अभी तक वापस नहीं मिले हैं। ऐसे में उड्डयन मंत्री ने बताया कि इंडिगो को जो एक नोटिस जो है वो भेजा गया है और जवाब जो है उस नोटिस के द्वारा मांगा गया है। लेकिन जिस तरीके से फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से जो एयरलाइंस दूसरी एयरलाइंस कंपनी थी उनके लिए
नियम जो है वो लागू किए गए थे और उन नियमों के तहत जो 0 से 500 किलोमीटर तक का सफर था तो उसके लिए एक 7500 रुपए जो है वो तय किए गए थे। वहीं अगर बात करें 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में जो दूरी थी उसके लिए 12,000 रुपए तय किए गए थे और 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक उनके लिए 15,000 रुपए तय किए गए थे और जो 1500 2000 किलोमीटर तक का सफर था उसके लिए 18,000 रुपए तय किए गए थे। तो इस तरीके के रेट तय किए गए थे क्योंकि जो दूसरी एयरलाइंस कंपनी थी वो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो है उन्होंने अपने जो रेट लिस्ट थी वो बढ़ा दी थी। तो इस तरीके के कदम उठाए हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जल्द ही जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो इंडिगो के पास जो यात्रियों का पैसा फंसा हुआ है उसको भी जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री का लोकसभा में जवाब। स्पष्ट कहा, इंडिगो को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और जिम्मेदारी तय की गई है और जो लोग इसके दोषी होंगे नियमों के तहत उन पर कार्रवाई होगी।